लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। पोंगा पंडित यही होते हैं, ये नीच सोच के लोग हैं। नीच सोच के ये लोग समाज को आगे बढ़ाए। आप संविधान को छोटा समझ रहे हैं। संविधान माने संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं चलता था? आपने गाली दिया, जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कहे तो जाकर मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हैं। जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते हैं। नीति के संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। संविधान की कह दो जाकर संविधान की कह दो जाकर। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था, हिंदू नहीं था। अम्बेडकर हिंदू था ही नहीं। आप अपना उसको हिंदुओं का संविधान बनाने का अधिकार नहीं था। मारेंगे आपको आतंकवादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आतंकवादी ऐसे घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं आतंकवादी। ऐसे नीच आतंकवादी आपको मिल जाएंगे। वही ऐसे ही घूम रहे देश में। इनको जेल अगर नहीं हुई तो ऐसे लोगों को ये सरकार निकम्मी है। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। नीति संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। संविधान की कह दो जाकर संविधान की कह दो जाकर। क्या इन्होंने लफ्ज यूज किया है यहाँ पे? अगर एक मुसलमान कर दिया होता अब तक यहाँ पे तांडव मचा दिया होता। एक अम्बेडकर जी को इन्होंने कहा कि देशद्रोही था, वो आतंकवादी था। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ଆଉ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନେ ନାହିଁ କହିଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗାଳି ଦେଉଛି। ତେବେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। କାରଣ ଇଏ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭାରତ ନିଜେ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି, ଭାରତ ସରକାର ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ସାମ୍ନାରେ। ଏଭଳି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଇଏ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ବି ଥିବେ ଦୁନିଆରେ, କେବଳ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜ ରହିଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏମିତି ସବୁ କଠିନ ନିୟମ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଦଳିତକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳିତର ନିଦ ପୁରା ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା ଦଳିତ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କିପରି ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ନିଜେ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବି। ଆଉ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଭାରତରେ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ଜର୍ମାନୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କିଏ? ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ, ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲେ, ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଦଳିତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି କିଏ? ଏଇ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ମରିଯିବ।
ଦେହରେ 5 କେଜି ମାଂସ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଗାଳି ଦେଉଛି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଜଳେଇଲେ, ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ମୋ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗାଳି କରିବା କିମ୍ବା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଭୀମ ଆର୍ମିର କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଲୋକକୁ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ। धन्यवाद। कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। हाँ? जन्म से। आप कौन सी जाति के? जन्म से जाति होती है, कर्म से नहीं। आप कौन सी जाति के? आप इसमें भी देख लीजिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, छोटा सा स्थान राष्ट्रपति, और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति से भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की और संविधान राम का चलते महान था। संविधान राम का महान था। संविधान महान है, भारत का संविधान महान। संविधान सब धर्म के विरुद्ध है। क्या भड़का सब निकलवा ले रहे हैं यार। मैं खुलकर कहता हूँ, संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलना। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून, नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। की बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर, की बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर। जेल जाओगे? नहीं मानते संविधान को, जेल जाओगे? जेल कैसी जेल साले कौन भेजेगा? महान है ये डायलॉग जो बोल रहे हैं, जन्म से महान ऐसे होते हैं फिर जो शब्दों का बिल्कुल सही। भगवान के बड़ा विधान को नहीं मानते हो, जेल जाओगे आप? जेल की ऐसी तैसी खेल है। आप ब्राह्मण हैं और योगी भी सबर हैं, मनवादी हैं। मैं भी मनवादी हूँ, जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले जा करके। योगी भी मनवादी हैं, सब क्षत्रिय मनवादी हैं। होश में हो ना, नशे तो नहीं किए कोई? होश में तुम हो, नहीं हो। जो संविधान का नशा चढ़ा है, संविधान का नशा तो है। संविधान का नशा है तो मेरे ऊपर धर्म का नशा है। हाँ, कौन सा नशा? जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे, भगवान जहाँ पढ़ने गए। ऐसे नीच सोच के लोग हैं जो धर्म को महान बनाते हैं संविधान के आगे। ऐसे ही लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। कृष्ण भी शांतिपन को गुरु बनाया, यहाँ भगवान भी ब्राह्मण को। ऐसे ही लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। पोंगा पंडित यही होते हैं। ये नीच सोच के लोग हैं। नीच सोच की ये लोग समाज को आगे बढ़ाते। आप संविधान को छोटा समझ रहे हैं। संविधान माने संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं चलता था? आपने गाली दिया, जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कह दो जाकर, मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हो? जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था, हिंदू नहीं था। अम्बेडकर हिंदू था ही नहीं। आप अपना उसको हिंदुओं का संविधान बनाने का अधिकार नहीं था। आपके दिमाग में बहुत ही मानसिक कुष्ठा भरी हुई है। मानसिक कुष्ठा भरी है। तुम्हारी नहीं है, तुम जानते नहीं बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। 50 लड़के बौद्ध धर्म का के अयोध्या में, और उन्होंने कहा कहते थे कि मारेंगे मर जाएंगे। आपको आतंकवादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आतंकवादी ऐसे ही घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं आतंकवादी। ऐसे नीच आतंकवादी आपको मिल जाएंगे जो संविधान का विरोध करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। अब सोचिए, ये उम्र है और नफरत फैला रहे हैं। गलत चीज ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे लोग सामने जाएंगे। देशद्रोही ऐसे ही घूम रहे हैं देश में। इनको जेल अगर नहीं हुई तो ऐसे लोगों को ये सरकार निकम्मी है। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। क्या इन्होंने लफ्ज यूज किया है यहाँ पे? अगर एक मुसलमान कर दिया होता, अब तक यहाँ पे तांडव मचा दिया होता। एक अम्बेडकर जी को इन्होंने कहा कि देशद्रोही था, वो आतंकवादी था। ये इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है। और एक अम्बेडकर, मैं अम्बेडकर वादी हूँ,
और ये योगी जी ये का अपने संविधान दोस्त- को कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अपना दोस्त बता रहे हैं। अरे ये कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्हीं में से राक्षसवादी लोग हैं। ये कुछ नहीं है भैया। और ये सीधी सी बात, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है।